Thank God for speaking to us, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने आज हमसे बातें की है उसके लिए, especially me actually. खास करके मेरे साथ। The spirit of like seniority or I am something. It's inbuilt in us. I'm not others, but I can say it's inbuilt in me. और जैसे हमने आज सीखा कि जो एक आत्मा होती है वरिष्ठ होने की या सीनियर होने की, आपके बारे में नहीं लेकिन मैं अपने बारे में इसको देख पा रहा था। See, it's not in the church also. That seniority goes in your house also, in your workplace also. और घर पे भी इसको देखा जा सकता है, काम की जगह पर भी इसको देखा जा सकता है। And even workplace, I can say I've worked for 30 years and I know everything. और ये काम की जगह पे मुझे ऐसा लगता है कि 30 साल से मैंने यहाँ पर काम किया है, मैं सब कुछ जानता हूँ। No, everybody should come to me and they should take advice and then certain things they should do. और सब लोग मेरे पास आने चाहिए, काम के बारे में सलाह लेने के लिए, सब मुझसे पूछने चाहिए, फिर काम करना चाहिए। Even some when the newcomer should come and come and greet me all those और जो things. नया व्यक्ति जो आता है, न्यू कमर जो आता है, वो भी मुझको आके मिलना चाहिए। So that thing is so inbuilt, like it's inside. और मेरे अंदर मैं देख पा रहा था कितनी अंदर वो चीजें मेरे अंदर भरी हुई है जैसे। But as editing on this earlier, where you will see in First Timothy, जैसे हम देखते हैं पहला तिमुथियुस chapter 1, पहला अध्याय and verse 15. 15 वचन। It is a trustworthy statement deserving full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, among whom I am the foremost of all. This is what Paul said. पौलुस यहाँ पर कहता है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है, मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। Now Paul, day by day, when he came more near and near to God, पौलुस जब और नजदीक यीशु मसीह के आते जाता है, he found himself that it was a wonderful God that every day he's saving me, he's changing me, he's teaching me, and now I've done so many things wrong. और वो सोचने लगता है कि मैं कितनी बड़ी गलतियां मैंने की है, लेकिन प्रतिदिन वो परमेश्वर मुझे बदल रहा है, मेरे जीवन के अंदर काम कर रहा है। And Christ Jesus came to save sinners, but I am the foremost because I have seen so many sins in my life. और वो देखता है कि कहता है कि यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए आया, लेकिन मैं सबसे बड़ा मैं हूँ, इतने अधिक पापों को मैं मेरे जीवन के अंदर देख पाता So हूँ। many mistakes I make daily, but Christ saves me. वो प्रतिदिन मैं कितनी गलतियां करता हूँ, लेकिन ये यीशु मसीह है जो मुझको बचाता है। When it comes to seniority, I can say that like many days I have lived. I have 30 years, but 30 years I have done more sins. और मैं सोच सकता हूँ जैसे कि सीनियरिटी के बारे में हम बात कर रहे थे कि मैंने और अधिक मैंने मेरे जीवन के अंदर बहुत पाप किए हैं But 29 सालों I'm के अंदर। grateful to see the mercy of God, the love of God, that every time He has come and saved me and He has lifted me up. और प्रभु की दया के लिए, प्रभु के प्रेम के लिए धन्यवाद करता हूँ। जब कभी मैं गिरता हूँ तब मुझे उसने उठाया है। That can be, that thankfulness can increase day by day. और ये धन्यवाद हमारे जीवन के अंदर प्रतिदिन बढ़ सकता है। We'll see in this Acts chapter 10. और प्रेरितों के काम 10 अध्याय, Here also there's one portion where it's given, like read verse 44 onwards. और 44 वचन से आगे जब हम पढ़ते हैं, It says, while Peter was speaking these words, the Holy Spirit fell upon those who were listening to the message. और पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतरा। And 45 says, and all the circumcised believers who had come with Peter were amazed और जितने खतना किए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हो जाते हैं। because saying the gift of the Holy Spirit had been poured upon the Gentiles. और क्योंकि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया था। God works in mysterious ways. और परमेश्वर जो है बहुत ही रहस्यमय रीति से काम करता है। This circumcised Jews who were saved, the believers. और खतना किए हुए जो यहूदी जो थे, विश्वासी थे, वे भी। But here it didn't say that they were, jealous or but they were amazed by the work of God. और यहाँ पर जो यहूदी लोग खतना किए हुए परमेश्वर का पवित्र आत्मा अन्य जातियों के ऊपर उतरते हुए देखते हैं, तो जलन से नहीं बढ़ते पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। So let's as we have our days in life. और हमारे जीवन के अंदर भी Let's be amazed by the work of God. प्रभु का जो काम जो है, आइए हम उससे आश्चर्यचकित Even a हो। small, boy can say a good word. और एक छोटा व्यक्ति भी, छोटा लड़का भी कुछ अच्छी बातें बोल सकता I है। can remember like last Sunday and one there's a children's message, children's memory verse.
और दो रविवार पहले बच्चों का एक मेमोरी बस बच्चा कोई बोल रहा था, The one kid, who said, Hallelujah. और एक बच्चे ने हालेलुया कहा, So it is, like that is a work of God, and that Hallelujah changed the atmosphere of the church. और वो हालेलुया ने सारे जो कलीसिया का जो वातावरण है उसको बदला। Let's be amazed by the work of God. आइए प्रभु का काम जो है उससे हम आश्चर्यचकित हो जाए, Let's see the work of God day by day. प्रतिदिन हम प्रभु के काम को देखें And let's, like thank Him, praise Him, and glorify His name. और आए प्रभु को धन्यवाद दे, उसको महिमा दे। I was really blessed by the message. मैं सचमुच आशीषित हुआ हूँ आज के संदेश से। Yeah, many things brother was sharing. बहुत सारे बातें भाई बांट रहे थे। So especially in Romans 15, he was sharing about how Paul felt like he was the least among. और रोमियो के 15 अध्याय के अंदर जैसे भाई बता रहे थे, पौल जो है अपने आप को बहुत ही कम सोच रहा था। And in the end, God spoke to me that not I, but the grace of God with me. और वो जो वचन मुझे छुआ वो है कि जैसे पौलुस कह रहा था, मैं नहीं परंतु परमेश्वर की कृपा मुझे चला रही है। So I see my life like this. सॉरी, I see my life like this. मैं मेरे जीवन को इस तरह देखता हूँ। When I go to my village where my father and mother was born, जब मैं अपने गांव को जाता हूँ जहाँ पर मेरे माता पिता जब पैदा हुए थे, there is a long stretch of graveyards where all my generations are there. At और least मैं वहां most पर of them. देखता हूँ कि हमारे गांव में एक बड़ा कब्रिस्तान है जहाँ पर हमारे जो पूर्वज जो है सब वहां पर रखे गए हैं। In most of that, all of them died as Hindus. और उन सभी हम ग्रेवयार्ड में जो कब्रिस्तान में हम देखते हैं कि सभी लोग जो है पूर्वज जो हमारे जो है वो लोग हिंदू ही मरे हैं। In my family, my father also died, and मेरे पिता भी मरे मेरे परिवार में, why me? लेकिन क्यों मैं? I got a chance to know Jesus. और मुझे मौका मिला कि मैं यीशु प्रभु को जानूं। That's something that I wonder. और Sometimes, ये जो ऐसी बात है जो मैं अचंभित होता हूँ। He chose me and He gave me a chance. और उन्होंने मुझे चुना और मुझे एक मौका दिया। And that's not increasing. It's stopped, and very little only my family is getting. But और वो बढ़ नहीं रहा है, बल्कि ये थोड़ा ही है और उनसे भी मेरे परिवार तक ही सीमित है। so I'm very grateful that I was thinking about John 15. I was feeling like that prodigal son, and brother exactly picked up that. और मैं बहुत ही आशीषित हूँ और मैं वो सोच रहा था कि जैसे वो उड़ाऊ पुत्र जो है उसके बारे में मैं सोच रहा था। And he comes in 15 verse 21. It says, and the son said to him, Father, I have sinned against heaven and heaven and in your sight. I no longer worthy to be called your son. और जो उड़ाऊ पुत्र है वो आके पिताजी से कहता है कि मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। He's talking to the father. और वो प्रभु से बात कर रहा है, पिता से बात कर रहा है। Father is not talking to him. और पिता जो है उससे बात नहीं कर रहा है। Father is talking to everyone else. और पिता जो है बाकी सबसे बात कर रहा है। But the father said to the slaves, quick, bring a rope, then bring a ring and a sandal. He tells everyone, but he's not talking to the son actually. और वहां पे हम देखते हैं कि पिता जो है दासों से कह रहा है, बातें कर रहा है कि अच्छा वस्त्र निकाल कर पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी डालो, जूते पहनाओ। And he's talking about him to everyone, not to him. और वो पिता जो है उसी के बारे में, बेटे के बारे में बात कर रहा है, दूसरों से बात कर रहा है, लेकिन उससे नहीं बात कर रहा है। That's what happens in my life. I see that God is taking care of me in every way. He doesn't talk to me. He doesn't say that you sinned, you ran away, you did this, you did that. और मैं मेरे जीवन में देख रहा हूँ कि प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर रहा है और मेरे पापा को नहीं गिना रहा है कि मैं तुमने ये किया वो किया, लेकिन वो मेरे जीवन में आशीषों को वो देते जा रहा है। I'm not talking about the external life, but I'm talking about the changes that God is showing me. और मैं बाहरी जीवन के बारे में नहीं कह रहा, बल्कि मैं मेरे भीतरी जीवन में जो परमेश्वर जो कर रहा है वो जो मुझे दिखा रहा है। I'm happy, I'm grateful that least person like me can get. और मैं खुश हूँ कि मैं और परमेश्वर का आभार मानता हूँ कि जो कि बहुत ही निर्बल और दुर्बल व्यक्ति जो मैं हूँ और परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। When the elder brother was not able to see this father, but being sinful, I could see this father's love. और जो बड़ा भाई था
वो उस पिता को नहीं देख पा रहा था, लेकिन एक पापी होने के बावजूद भी वो पिता को देख पा रहा है, मिल पा रहा है, बात कर पा रहा है। I stay humble. I want to be grateful. I want to be humble as much as possible to think again it is by grace. और मैं नम्र रहना चाहता हूँ, और मैं परमेश्वर के सामने उसकी कृपा में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, नम्र रहते हुए। I was blessed by the message. Thank you. और मैं आशीष हुआ आज के संदेश से, Yes, I was really blessed by the message, और मैं बहुत ही आशीष हुआ आज के संदेश से। and that I don't deserve most of it what the Lord has done for me. I don't deserve, और मैं किसी चीज के लिए भी मैं उसके काबिल नहीं हूँ, and that constantly remind that we have to humbly come to Him और मैं ये निरंतर मुझे बार बार ये याद दिलाता है कि from मैं परमेश्वर के पास आऊँ, from the least and from the bottommost pit. He has picked us up. और जहाँ पे मैं एकदम निर्बल था और जिस गड्ढे में मैं था वहां से मुझे उठाया। I was blessed with the memory verse और मैं आज के मेमोरी वर्स से मैं आशीष हुआ। as I was meditating on it in Matthew 4 verse 10. जब मैं उस पर मनन कर रहा था मैथ्यू 4:10 पर, It says, "You shall worship the Lord your God and serve Him only." और जैसे कहता है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। I was touched with just one word there. और मैं सिर्फ इस एक वचन से मैं इस वचन ने मुझे छुआ, The last word, it says only. और जो आखिर में कहता है कि सिर्फ उसी को। We can read it again. You shall worship the Lord your God and serve Him only. वहां पे कहता है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। Is Jesus the only person in my life? क्या यीशु प्रभु एक ही व्यक्ति जो है मेरे जीवन के अंदर है? Am I giving my worship to only Jesus? क्या मैं मेरे जीवन को मेरी आराधना को सिर्फ मैं यीशु प्रभु को दे रहा हूँ? Is my body a living sacrifice to only Him? क्या मेरा जीवन जो है, मेरा शरीर जो है, क्या सिर्फ उसी को मैं बलि के रूप में दे रहा हूँ? We read Romans 12 verse 1. जब हम पढ़ते हैं रोमियो 12:1, It says, "By the mercies of God, I present my body as a living sacrifice, holy and acceptable to Him." और परमेश्वर की दया के द्वारा मैं मेरे शरीर को पवित्र भावता हुआ मैं बलि चढ़ाता हूँ। Which is our spiritual service of worship. और ये यही हमारी आत्मिक सेवा है। That word, there's a word that says acceptable to God. और वहाँ पे वो वचन कहता है कि परमेश्वर को भावता हुआ। Is my service, is my body to Him acceptable? The things that I do, the tasks that I do, is it acceptable to Him? क्या मेरा जो सेवा है, क्या मेरा शरीर जो है, क्या वो परमेश्वर को भावता हुआ है? I was meditating it the whole week, and it came to me that even the mundane tasks that I do, और मैं इस पूरे सप्ताह भर में इस पर मनन कर रहा था, और मैं मंडे को जो चीजें करता हूँ, is a basic task that I do, the simplest task that I do. और जो सामान्य चीजें जो मैं करता हूँ, Is it acceptable to God? क्या वो परमेश्वर को भा रहा है? That is something that was coming to my heart. और वो ये जो बातें हैं मेरे हृदय में आ रहा Or है। is there another replacement that I love something else, or I love Jesus more? और या फिर उसके बजाय मैं किसी और को मैं ज्यादा प्रेम करता हूँ या करता हूँ। I was blessed when I was reading Genesis chapter 22, the story of Abraham when he was offering his son Isaac. और मैं उत्पत्ति के अंदर अब्राहम जो ईसा को जब बलि चढ़ा रहा था, उस वचन ने भी मेरे को छुआ। In verse 2, in Genesis 22 verse 2, it says, he said, "Take now your son, your only son whom you love, Isaac, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on the mountains of which I will tell you." और वहां पर परमेश्वर कहता है कि अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। The only son which whom you love the most. एकलौता पुत्र जो जिससे तुम बहुत प्रेम करते हो, And take him and go and offer him. और लेके जाकर उसे समर्पित करो, होम बलि करके चढ़ाओ। This is something in my life, or probably myself, which I love so much that I can take and offer it to God. क्या मेरे अंदर मेरी खुद ही को मैं क्या फिर उस तरह लेके जा रहा हूँ कि मैं जाकर बलि करके चढ़ाऊं? Worship comes with a lot of sacrifice. और जो आराधना जो है, ये बहुत ही उपासना जो है, बहुत ही बलिदान के साथ आता है। We know the story, and later, in verse 12, हम इस कहानी को जानते हैं, इस घटना को जानते हैं, और आगे 12 वचन में कहता है, this is after Abraham
put his son on the altar and God stopped him. और हम आगे देखते हैं कि अब्राहम ने इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए वहां पे रख दिया था। Verse 12, he said, do not stretch out your hand against the lad and do nothing to him. For और- now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. और परमेश्वर वहां पे कहता है कि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। The only son whom he loved the most, he didn't withheld him from God. और एक ही एकलौता पुत्र जो इसहाक जो उसके पास था, उसने उसे रोका नहीं, उसे उसे समर्पित किया। Am I withholding my life from God? क्या मैं अपने जीवन को मैं रोक रहा हूं परमेश्वर को सौंपने से? Where it's supposed to be a sacrifice to him. और जो मेरा जीवन जो है एक समर्पण या बलि के रूप में होना चाहिए, There's something else come as an idol before me. क्या फिर दूसरा कोई चीज जो है एक बलि के सॉरी एक मूर्ति के रूप में मेरे सामने आ रहा है? Or is Jesus the only one that I worship? क्या फिर यीशु प्रभु वो एक ही व्यक्ति है जो जिसे मैं उपासना करता हूँ? May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए। जैसे हम कुरंती में जब पढ़ रहे थे पौलुस के बारे में कि वो खुद को सबसे नीचे बता, मैं इस योग्य भी नहीं, ऐसे वो कह रहा था। तो मेरे जीवन में भी ऐसा ही कुछ हो रहा था, जहाँ पे मैं कुछ दिन मसीह में सही से चलने लगा तो मेरे अंदर वो एक केयरलेसनेस आ गया, जहाँ पे मैंने मेरा गार्ड नीचे कर दिया, जो मैं एकदम हल्के में लेने लगा। वो ऐसे था कि मैं कुछ कुछ चीज़ों को बहुत हल्के में ले रहा था। इस समान था कि जैसे मैं नाइफ को लेके अपने स्किन पे ऐसे चला रहा हूँ और बोलूँगा कि अगर मैं हल्के से ही करूँगा तो वो कटेगा नहीं, लेकिन वो नाइफ बहुत शार्प है और वो कट गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब मैं ऐसे सोच रहा था कि जब मेरे अंदर भी घमंड आ जाता है, मैं केयरलेस हो जाता हूँ अपने आप और उसे बहुत हल्के में लेने लग जाता हूँ। और फिर यहाँ पे 1 Corinthians chapter 15 verse 10 it says, but whenever I am now, it is all because God poured out his special favor on me and not without result. For I have worked harder than any of the other apostles, yet it was not I, but God who was working through me by his grace. So anything what Paul is saying here, he's saying that it is all because of God's grace. If there is no God's grace, I cannot do anything. Though he's saying this, I have worked harder. Now we would think, okay, now he's promoting himself, he's boasting about how much work he has done, but it says no, it is because yet it was not I, but God who was working through me by his grace. So when I don't receive this grace from God, I cannot do anything. I cannot come on time, I cannot work here in church. I can try from my own self, but it won't last. But through Christ, through grace, I can do. And in verse 1, the last part says, you welcomed it then and you still stand firm in it. So we have to hold it, we have to grab it and stand firm in it. If we will not stand firm in it, we will take it very lightly, grantly, and we will let our guard down, we will fall.